everyone, welcome to my channel Around AI. I am Mahir Patel. I am 9 years old, AI enthusiastic. I have a deep passion for artificial intelligence. I am super excited to share my passion for artificial intelligence with you. Before we dive into the exciting topic, how artificial intelligence work, I want to take a moment to recommend that you watch my previous video. उस वीडियो में मैंने artificial intelligence का comprehensive introduction cover किया है. It's a fundamentals and the basic concepts that are essential to understand before we move forward. It's a great starting point, especially अगर आप AI के वर्ल्ड में नए हैं. तो अगर आपने अब तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको strongly encourage करता हूँ कि आप वो वीडियो जरूर देखें. You will gain a solid foundation. So in this video, we will take one step forward and understand how AI works. First, we will do a quick recap of basic concept of AI that we have covered in previous video. फिर हम देखेंगे कि AI काम कैसे करता है, जैसे कि डाटा कलेक्शन, डाटा प्रोसेसिंग, एल्गोरिथम और मशीन लर्निंग का रोल. We will also discuss practical examples and real-world applications to help you understand how AI is used in our daily lives. We will look at how AI systems are trained and how AI systems provide accurate results. So without any further delay, let's start. Now let us understand how AI works in very easy language. Artificial intelligence or AI is like teaching computer to think and learn like just humans do. There are few steps. First step is learning from data. Second step is to feed data into various algorithms. Third step is based on outcome. AI model को train करना means training process. Fourth step is making decision process of AI model. AI takes decision on its own जब हम उससे कोई relevant question पूछते हैं. Fifth step is improving over time. Means AI model also learn from new data and improve itself for better prediction. Artificial intelligence का पहला स्टेप है एक डेटा से सीखना. पहले समझते हैं कि डेटा क्या है. डेटा किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, एनी टाइप. डेटा एआई के लिए वही होता है जो पेट्रोल और डीजल कार के लिए होता है. जैसे बिना फ्यूल की कार एक कदम भी नहीं चल सकती. विदाउट डेटा AI एक स्टेप भी नहीं ले पाता. विदाउट डेटा AI जस्ट एक ब्यूटीफुल स्टैच्यू बन के रह जाएगा. जैसे हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, AI मॉडल भी डेटा से पैटर्न और insights आइडेंटिफाई करता है. Just like we learn from our experience, AI model learns from data. The more data it has, better it can understand and make decisions. Learning from data का मतलब है कि AI मॉडल पैटर्न और ट्रेंड को पहचानने की कोशिश करता है जो उन डाटा में छिपा होता है. जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी इमेजेस है कैट और डॉग की. AI इस इमेज को एनालाइज करके ये सीखता है कि कैट और डॉग की इमेजेस में क्या अंतर है. ये लर्निंग प्रोसेस स्टैटिस्टिकल मेथड और एल्गोरिथम्स का यूज करके होती है. डाटा जितना ज्यादा और हाई क्वालिटी का होता है, AI मॉडल उतना ही बेहतर तरीके से सीख पाता है. सो इट इज लाइक टीचिंग अ कंप्यूटर बाय शोइंग लॉट्स ऑफ हाई क्वालिटी डिफरेंट एग्जांपल्स ताकि वो फ्यूचर में सही डिसीजंस ले सके. डाटा इज लाइक फूड फॉर AI. उसे जितना ज्यादा फीड करेंगे वे उतना ही बेहतर परफॉर्म करेगा. जितना ज्यादा डाटा होता है, AI मॉडल उतना ही एक्यूरेट डिसीजन ले पाता है. डेटा से सीखकर AI मॉडल नए सिनेरियो में भी सही फैसले लेने पर सक्षम हो जाता है. इसका मतलब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी AI की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेकंड स्टेप ऑफ how AI works, that is the brain of AI. It is called as algorithms. Algorithms are like recipe that tells computer how to process data and learn from it. Different algorithm can solve different problems. Algorithm वो detailed instructions होती है जो कंप्यूटर को बताती है कि डेटा के साथ क्या करना है. ये कुछ ऐसा ही है जैसे हम किसी रेसिपी को फॉलो करते हैं. एल्गोरिथम की मदद से AI मॉडल सीखता है कि डेटा में छिपे पैटर्न को कैसे पहचानना है. जैसे अगर हम AI मॉडल को एक एल्गोरिथम दे जो इमेज में कैट और डॉग को डिफरेंशिएट करे. एल्गोरिथम इन इमेज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है और हर पार्ट को एनालाइज करता है. ये देखता है कि इमेज में क्या क्या कॉमन फीचर्स, जैसे कैट के चेहरे के शेप और डॉग के कानों का आकार. फिर इन फीचर्स को पहचान कर एक पैटर्न बनाता है. जब कोई नई इमेज आती है तो AI मॉडल इन पैटर्न्स को कंपेयर करके डिसाइड करता है कि इमेज में कैट है या डॉग है. इसी तरह
AI मॉडल लर्निंग करके इमेज में छिपे पैटर्न्स को पहचानने लगता है। हर प्रॉब्लम के लिए एक स्पेसिफिक एल्गोरिदम होता है जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मदद करता है। एल्गोरिदम ही वो मैजिक फॉर्मूला है जिनसे AI को सोचने और समझने की ताकत मिलती है। एल्गोरिदम ही है जो AI को गाइड करते हैं और उसे सिखाते हैं कि चीजों को कैसे समझना है और डिसीजन कैसे लेना है। Let's dive into the third step, how AI operates, the training of AI model with extensive data. This is where we feed lots of data into AI model and let it find patterns, insights and learn from them. ट्रेनिंग का मतलब है AI मॉडल को सिखाना कि कैसे डेटा एनालाइज और इंटरप्रीट करना है। AI एल्गोरिदम इस लेबल डेटा से पैटर्न को पहचानता है और सीखता है कि इमेज में डॉग है या कैट। ये प्रोसेस कई इटरेशन में होता है जहां AI मॉडल बार बार लॉट्स ऑफ लेबल डाटा को एनालाइज करता है और अपने मॉडल को रिफाइन करता है। जितना ज्यादा और हाई क्वालिटी का डेटा होता है, AI मॉडल उतना ही बेटर तरीके से सीखता है और एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर पाता है। इमेजिन करो कि AI मॉडल ट्रेनिंग एक स्टूडेंट की तरह है जो प्रैक्टिस करके अपने स्किल को इम्प्रूव करता है। जितना ज्यादा वो क्वालिटी प्रैक्टिस करेगा उतना ही बेहतर होगा। उसी तरह AI मॉडल भी डेटा से सीखकर और प्रैक्टिस कर इंटेलिजेंट बनता है। Let's explore the fourth step of how AI operates, making decision on previously learned data. Once AI model is trained, it can make decision on what it has learned. जब AI मॉडल को डेटा से ट्रेन कर दिया जाता है, सो वह लर्न पैटर्न और इंसाइट का यूज करके डिसीजन ले सकता है। डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि AI को एबिलिटी देना कि AI मॉडल ऑलरेडी लर्न इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर एक्शन ले सके। जैसे अगर AI मॉडल को कोई नई इमेज दिखाई जाती है तो वह रिकॉग्नाइज कर सकता है कि ये इमेज डॉग की है या कैट की है। इस प्रोसेस में AI पहले से सीखे हुए पैटर्न्स को अप्लाई करता है और उस डाटा को एनालाइज करता है। बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस AI मॉडल प्रेडिक्ट करता है और मोस्ट एक्यूरेट डिसीजन लेने का ट्राई करता है। ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत एफिशिएंट और फास्ट होता है और इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन का भी बहुत कम जरूरत होता है। इमेजिन आप एक AI सिस्टम से ट्रैफिक लाइट कंट्रोल करना चाहते हो। ये सिस्टम ट्रैफिक लाइट के रियल टाइम डेटा को एनालाइज करेगा और फिर डिसाइड करेगा कब और कहाँ ग्रीन, येलो और रेड लाइट ऑन करनी है ताकि ट्रैफिक स्मूथ और एफिशिएंट रहे। AI की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी उसे बहुत पावरफुल बनाती है क्योंकि वह कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को क्विकली सॉल्व करने में सक्षम है और इसके डिसीजन अक्सर ज्यादा एक्यूरेट होता है। नाउ लेट्स अनकवर fifth step of how AI works, enhancing its ability over time. The more it practices and gets feedback, the better it becomes at making accurate decisions. AI system लगातार अपने परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन होते हैं। Think of it like teaching a child. You give them examples, they learn from them, and over time, they get better and making decisions. AI works in similar way, but it can process much more information at a much faster pace. Imagine करो, AI एक स्टूडेंट है जो लगातार प्रैक्टिस करके अपने मिस्टेक से सीखकर बेटर बनता जा रहा है। जैसे जैसे AI मॉडल को लॉट्स ऑफ डेटा मिलता है, वो ज्यादा इंटेलिजेंट और एफिशिएंट होता जाता है। इसी तरह AI सिस्टम टाइम के साथ स्मार्ट और कैपेबल बनते जाते हैं, जिससे उनकी डिसीजन मेकिंग और परफॉर्मेंस में सुधार आता है और इवॉल्व करता है कि उसने कितनी एक्यूरेसी से काम किया है। फिर अपने एल्गोरिदम को रिफाइन करता है और अपने मॉडल को इम्प्रूव करता है। Now let us understand how AI works through one practical example. We'll discuss about EPFL's Raven robot, जो एक bird inspired robot है। Raven can walk, jump and transition to ground to air very seamlessly. It can mimic the versatile movement of bird. To make it perform like actual bird, there are few steps. The first step is data collection. AI का सबसे पहला स्टेप है डेटा कलेक्ट करना। Raven robot के लिए EPFL's researcher would have collected lot of data, like bird कैसे walk करते हैं, hop कैसे करते हैं, how it fly. Then after, इन data points का यूज करके उन्होंने Raven robot के लिए एक डेटाबेस तैयार किया। Sufficient डेटा कलेक्शन के बाद उस कलेक्टेड डेटा को प्रोसेस करने के लिए एल्गोरिदम डेवलप किया जाता है। Raven robot के लिए एल्गोरिदम वो लॉजिक और रूल्स है जो Raven robot को बर्ड्स की तरह मल्टी मॉडल मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। ये एल्गोरिदम्स Raven robot को जमीन से उड़ने तक के सारे स्टेप को कंट्रोल करता है। नाउ ट्रेनिंग, फिर एल्गोरिदम्स को डेटा पर ट्रेन किया जाता है। Raven robot के लिए EPFL रिसर्चर्स ने Raven robot को बर्ड्स की अलग अलग मूवमेंट्स करने के लिए
ट्रेन किया है ताकि वो बर्ड की तरह परफेक्ट मूव कर सके। नाउ डिसीजन मेकिंग, दिस स्टेप इज लाइक जैसे रेवन रोबोट में जान आ गई है। इफेक्टिव ट्रेनिंग के बाद विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम्स रियल टाइम में डिसीजन लेने की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। रेवन रोबोट ये डिसाइड करता है कब और कैसे हॉप करना है, कब और कैसे फ्लाई करना है और कैसे लैंड करना है। दिस डिसीजन मेकिंग हेल्प्स इट मेक द राइट मूवमेंट एट द राइट मोमेंट। फाइन ट्यूनिंग, एट लास्ट एल्गोरिदम को फाइन ट्यून किया जाता है सो दैट रेवन रोबोट बिकम परफेक्ट इन सिमुलेशन ऑफ बर्ड मूवमेंट्स। EPFL की रिसर्चर टीम ने रेवन रोबोट की परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया और इम्प्रूव किया। न्यू डेटा कलेक्ट किए, एल्गोरिदम को और फाइन ट्यून किया, फिर न्यूली कलेक्टेड डेटा पर ट्रेन किया so that the Raven robot can move naturally and efficiently like bird. अब लगता है ना रियल बर्ड की जैसा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना आसान लगता है, बट इन रियलिटी इट इज नॉट सो सिंपल। इसमें एडवांस रिसर्च की जरूरत होती है, जैसे हमने रेवन बर्ड रोबोट के केस में देखा। इन रियलिटी डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट स्टेप्स होते हैं और अलग अलग टाइप की मशीन लर्निंग मेथोडोलॉजीज यूज होती है, जैसे सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। हर प्रोजेक्ट की अपनी यूनिक चैलेंजेस और रिक्वायरमेंट होती है, जिससे एआई की कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाती है। जैसे कुछ एआई सिस्टम खुद से सीखते हैं और इम्प्रूव करते हैं, जबकि कुछ एआई सिस्टम को लगातार ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत होती है। Recently, I came across about Elon Musk company Tesla's humanoid robots. Do you know it? How Tesla trains its humanoid robot to handle real-world challenges so that ये रोबोट चल सके, दौड़ सके और बहुत सी कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म कर सके। To collect the data of every scenario, Tesla's researcher team allow humanoid robot to walk on uneven terrain. It is not just about putting one foot in front of others. It is about maintaining balance, adapting to the environment, and ensuring stability. Walking surfaces are unpredictable and uneven. पथरीले रास्ते और घास के मैदान and uneven construction sites. These are the perfect testing grounds for the robots to collect the valuable data. ये डेटा टेस्ला रिसर्चर्स की टीम के लिए very important है। वो इस डाटा को रोबोट के एल्गोरिदम को बेहतर बनाने के लिए यूज करते हैं। This process brings us closer to the future, where robots can assist us in diverse and challenging settings. आखिरकार AI एक ऐसा क्षेत्र है जो continuously evolving और इसके लिए dedication और persistence की requirement होती है। Hope I have explained how AI model works and improve over time in a simple and engaging way. If you have any more questions or need further clarifications, feel free to ask it comment section below. AI का मकसद है हमारे जीवन को और भी आसान बनाना, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, एजुकेशन में या फिर डे टू डे रूटीन मोनोटोनस टास्क्स। इन रोबोट्स की कैपेबिलिटीज हमें दिखाती है कि आने वाले समय में हम AI से क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं। As a human, we should spend our quality time in critical thinking rather than just spending our time in completion of such monotonous tasks. In a near future, AI की हेल्प से ये भी पॉसिबल हो जाएगा। Before we wrap up, it's important to highlight that tech giants like Google और Microsoft हमेशा आगे रहने की कोशिश में रहते हैं, खासकर OpenAI के जैसे कंपटीटर के खिलाफ। Do you know OpenAI was co-founded by Elon Musk? But interestingly, Elon Musk अब OpenAI के साथ कनेक्टेड नहीं है। Instead, he has initiated his own AI company xAI. You should know, AI की बढ़ती महत्वपूर्णता के साथ इस क्षेत्र में very large number of skilled workforce की बहुत सख्त आवश्यकता है। In response to that, Google और Microsoft ने विश्व भर में extensive AI प्रोग्राम शुरू किए हैं ताकि हर इंडिविजुअल को AI फील्ड में ट्रेन किया जा सकता है। It's a really an exciting time to be part of this rapidly evolving industry. That's the reason I have started this channel around AI, so that each one of you can learn the basics to advance AI and participate in such programs to be a future ready. Around AI चैनल पर हम AI की फील्ड में होने वाली लेटेस्ट डिस्कवरीज एंड डेवलपमेंट के बारे में भी बात करेंगे, ताकि आप सब लेटेस्ट डेवलपमेंट से अपडेटेड रहे। चलिए AI की एक्साइटिंग दुनिया में साथ मिलकर सफर करते हैं और लेटेस्ट अपडेट की जानकारी हासिल करते हैं। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड जॉइन AI लर्निंग कम्युनिटी। Learning together is always more fun. Remember, the information I share here is for educational purpose only. Please do your own research and fact checking. What do you think about this video? Share your thoughts through comments in comment section below. In the next video, I will talk about how to start the first step toward learning AI, and that is the learning of Python programming language. See you in next video. Have a good day.